सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इनकाउंटर करेंगे सैम्पलिंग, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद दोस टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहली चीज, व्हाट इज पॉपुलेशन? Population is the complete set of items of interest. Full stop. In statistics, we often need information about a particular group. This group is known as population or target audience or target population, target audience. Full stop. Population can be small, large, or infinite. Survey refers to method of collecting information. Information is collected through surveys, and there are two ways of doing a survey. Census, जिसको मर्दमशुमारी भी बोलते हैं, sample survey. What is census? When the entire population is surveyed, it is called census. In a census, every member of the population is included. If the population is small, census is the best strategy for survey. And for small population, census is very straightforward. Comma, it includes 100% response from 100% population. Full stop. When the population is very large or infinite, census becomes a very time consuming task and it is difficult to do so with accuracy. Full stop. Thus, for a large or infinite population, doing census is practically not possible, as each member of the population cannot be surveyed. Number 4. What is a sample survey? लिखिए, the alternative method of carrying out a census, the alternative method of carrying out a census to collect information is called a sample survey. It does not cover 100% of the population, but in case of large and infinite population, it is the only option to collect information, as sample data can be obtained relatively quickly and easily and is cost effective. If a sample is to be chosen, then in order to maintain accuracy of the data collected, the sample must be a representative of the population in order to maintain reliability at all times. Full stop. The sample must have all the characteristics of the population. Full stop. Sample is the part of the population which is the true representative of the population, having the same characteristics as that of the population. And if it is not the case, then it is not a good sample. अगला पैराग्राफ लिखिए. The size of the sample does not depend on the size of the population. Instead, it usually depends on time and resources available. Full stop. The larger the sample, the more reliable the information is. What is a sample design? Sample design comprised of 3 components. Target audience, sampling units, sample frame. टारगेट ऑडियंस का मतलब है मैं किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा हूं. तो अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स इन क्लास के ऊपर,
या मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं हॉस्पिटल्स इन कराची के ऊपर, या मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं टीचर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, तो मेरी टारगेट ऑडियंस है। अब इस टारगेट ऑडियंस में मेरा सैम्पलिंग यूनिट क्या है? सैम्पलिंग यूनिट आर द पीपल टू बी सैम्पल्ड, आर द पीपल और आइटम्स टू बी सैम्पल्ड। तो स्टूडेंट्स इन क्लास में सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा? स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल इन कराची में सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा? हॉस्पिटल्स। टीचर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स में सैंपल क्या होगा? टीचर्स। सैंपल फ्रेम, sample frame is the list of sampling units from which the sample is drawn. Once the sampling units from the target audience are individually named or numbered to form a list, then this list of sampling units is called the sample frame, and this should be as accurate as possible. बात समझ में आई? तो जब हम लोग सबसे पहले पर्पस ऑफ सर्वे आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स से मेरा पर्पस ऑफ सर्वे ये है कि मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने ए लेवल स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग हुई भी है, ठीक है? तो मेरा पर्पस आइडेंटिफाई हो गया कि कितने ए लेवल बच्चों की करियर काउंसलिंग हुई भी है, तो मुझे अपनी टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो इस पर्पस में टारगेट पॉपुलेशन क्या है? ए लेवल स्टूडेंट्स ऑफ कराची। अग्री? अग्री? वंस मैंने ये कर लिया, इसके बाद मुझे अपना सैम्पलिंग यूनिट आइडेंटिफाई करना है। सैम्पलिंग यूनिट विल बी द स्टूडेंट्स। वन सैम्पलिंग यूनिट्स आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे सैंपल फ्रेम बनाना है। हर स्टूडेंट्स को मैंने एक आईडी नंबर दे देना है। तो अगर मैं लेट्स से कराची के सारे ए लेवल स्टूडेंट्स का सर्वे करना चाहता हूं, तो क्या मेरी पॉपुलेशन स्मॉल है या लार्ज है? लार्ज है। कंपेयर टू अगर मैं बोलूं कि मैं सारे एएसटीसी स्टूडेंट्स का सर्वे करना चाहता हूं, स्मॉल है कंपेयर टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कराची is a large population, students of ASTC is a small population comparatively. तो अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो मैं इजीली सेंसस कर सकता हूं, मैं एक एक इंडिविजुअल का सर्वे कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सारे स्टूडेंट्स ऑफ कराची की बात करूं तो सबका सर्वे करना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मुझे उसमें से कुछ ना कुछ सैंपल चाहिए होगा। सैंपल में मैं हैंड पिक नहीं कर सकता। अगर मैं हैंड पिक करूंगा तो बायस का एलिमेंट है। बायस में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। तो टू इंश्योर कि बायस ना हो और मेरा जो सैंपल है इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो मुझे मेरा जो सैंपल है वो सैंपल बहुत अच्छे से निकलना चाहिए। तो मैंने ऑब्जर्व किया, डेटा कलेक्ट किया कि कराची में लेट्स से 2 मिनट के लिए 20,000 बच्चे ए लेवल का एग्जाम देंगे और मुझे सर्वे जो करना है वो 200 बच्चों का करना है। इट मीन्स 1% ऑफ द टारगेट ऑडियंस, 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर मुझे 1% ऑफ द पॉपुलेशन का सर्वे करना है, अब मैं वो 1% पॉपुलेशन चूज कैसे करूंगा? उसके लिए मेरे पास सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। हर बच्चे को कोई ना कोई यूनिक नंबर आइडेंटिफाइड हो। वंस यूनिक नंबर आइडेंटिफाई होगा, मेरा सैंपल फ्रेम डिसाइडेड होगा, तो मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं एक सैंपल डिजाइन बना के उसकी सैंपलिंग कर सकूं। यहां तक बात क्लियर है? तो जो स्टूडेंट्स का आईडी नंबर है, तो जो स्टूडेंट्स का आईडी नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, चाहे वो उसका स्कूल आईडी कार्ड नंबर हो, या वो उसका सीएनआईसी नंबर हो, या वो उसका फोन नंबर हो,
वो यूनिक होगा। कोशिश करना चाहिए ऐसा नंबर लिया जाए, ऐसी चीज ली जाए जो यूनिक हो। फोन नंबर में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि दो सिबलिंग्स एक फोन नंबर शेयर करते हो। सरनेम्स के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एक फैमिली मेंबर्स के सारे लोगों का सरनेम सेम होगा। अग्री? तो बेहतर है ऐसा नंबर हो जो यूनिक हो। हर किसी का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, हर किसी का रोल नंबर डिफरेंट होता है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि अच्छा सैंपल फ्रेम बना हुआ हो, सबके पास कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। व्हाट इज बायस? Bias means unfair practice. Bias means unfair practice or favoring someone or not giving everyone an equal chance. The purpose of sampling is to gain information. The purpose of sampling is to gain information about the whole population by selecting a sample from that population. This sample should be the representative of the whole population. And every member of the population must have an equal chance of being surveyed. And if it is the case, then there is no bias. But if it is not the case, then there is bias. सपोज करें मैंने बोला भाई आज तो मैं सबका होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है, और मैंने ये सोचना है कि किसका होमवर्क चेक करूं। अगर तो मैं सिर्फ सारे लड़कों का होमवर्क चेक कर रहा हूं तो बायस है। अगर मैं सिर्फ सारी लड़कियों का होमवर्क चेक कर रहा हूं तो भी बायस है। अगर मैं सिर्फ लेट आने वालों का होमवर्क चेक कर रहा हूं तो भी बायस है, क्योंकि दिस इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल रैंडमली लोगों के आईडी नंबर्स पुकारना शुरू करूं और बोलना शुरू करूं मुझे होमवर्क दिखाओ, देन बायस नहीं है, क्योंकि आप में से किसी का भी होमवर्क चेक हो सकता है, सबकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, धक 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 धक, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं मैं सिर्फ लड़कों का चेक कर रहा हूं तो हार्ट बीट सिर्फ लड़कों की तेज होगी, लड़कियां तो चिल करेंगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं लेट आने वालों का चेक करूंगा तो बाहर खड़े होकर तमाशा बन रहा होगा कि लोग बाहर खड़े होकर सिर्फ इंतजार कर रहे होंगे कि मैं तो अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मेरा होमवर्क चेक हो जाएगा, ठीक है। या मैं ये करूं कि मैं पूरी क्लास के सारे बच्चों की पर्चियां निकालूं, सबका नाम लिखूं पर्ची पे, और मैं उस पर्ची को एक बॉक्स में डालूं एंड उधर से एक एक करके हैंड पिक करूं। उसमें किसी का भी इक्वल चांस हो सकता है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग लॉट्स, बैलेटिंग, कुरानदाजी। सो एवरीवन हैज अ फेयर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कोई किसी का भी नाम आ सकता है उसमें। अग्री? तो इसमें बायस नहीं है। तो बायस क्यों अकर होता है? लिखिए, बायस अकर्स बिकॉज नंबर वन, लैक ऑफ गुड सैंपल फ्रेम। लैक ऑफ गुड सैंपल फ्रेम, सैंपल फ्रेम अच्छा नहीं है। हमने सैंपल फ्रेम नामों से रख लिया। अब हमजा नाम के 4 बच्चे हैं, अहमद नाम के 25 बच्चे हैं, 10 फातिमाएं, सैंपल फ्रेम मजे का नहीं है। या मैंने फोन नंबर रख लिया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 2 सिबलिंग शेयर कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक चूज हो सकता है, तो दे बोथ डोंट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। या मैंने सरनेम ले लिया तो जितने खान थे उनमें से कोई एक खान आ रहा है, अनफेयर मींस ऑफ सैंपलिंग फ्रेम हो गया। नंबर 2, रॉन्ग चॉइस ऑफ सैंपलिंग यूनिट। लेट्स से मैंने सर्वे करना है स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर स्कूल्स ऑफ कराची, तो मैंने पब्लिक सेक्टर स्कूल्स ऑफ कराची का सर्वे कर लिया, स्टूडेंट्स का नहीं किया, तो मेरा सैंपलिंग यूनिट गलत चॉइस थी। अग्री? या मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा हूं, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं खवातीन का विमेंस डे के बारे में। मेरा सैंपलिंग यूनिट कौन होना चाहिए? फीमेल्स, क्योंकि मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं।
मैंने लड़कों से सर्वे करना शुरू कर दिया, सैम्पलिंग यूनिट गलत होगी। नंबर 3, unresponsiveness of sampling units, या chosen units कर दो, ज्यादा बेहतर है, unresponsiveness of chosen units। तो जो सैंपल में चूज हुए थे लोग, वो सर्वे का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो क्वेश्चनर फिल करके नहीं दे रहे, वो सवाल के जवाब नहीं दे रहे। अग्री? वो किसी भी वजह से हो सकता है। मेरा सर्वे इंग्लिश में, मैं उर्दू मीडियम स्कूल में सर्वे कर रहा हूं, अनरिस्पॉन्सिवनेस होगा ना, बायस आ गया, गड़बड़ है। नंबर 4, द रिसर्चर इज बायस्ड। जो रिसर्चर है, जो बंदा सर्वे कर रहा है, वो बायस्ड। जो बंदा सर्वे कर रहा है वो एक्सट्रीमिस्ट है किसी भी चीज के बारे में, तो वो उन्हीं लोगों से सर्वे कर रहा है जो उसको लग रहा है कि उसके मतलब का जवाब देंगे। जो उसको पता है उसके मतलब का जवाब नहीं देगा, उसका सैंपल ही नहीं कर रहा, उसको सैंपल में शामिल ही नहीं कर रहा। ठीक है। एंड पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनहेरेंट बायस। इनहेरेंट बायस का मतलब है, क्योंकि हम सैंपलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो सैंपल है वो इत्तेफाक से ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ना हो। मैं सर्वे करना चाह रहा हूं कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, और इत्तेफाक से सैंपल में सारे के सारे वो बच्चे आ गए जो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आ सकते हैं ना, मैंने ड्राइंग लॉट्स किए और मैंने निकाला लॉट में 007, 0011, 0015, 0018, 0025, 135, ये जितने भी बच्चे इत्तेफाक से निकले, सारे बहुत पढ़ाकू बच्चे थे। अब अगर सारे के सारे ये पढ़ाकू बच्चे आ गए हमारे पास, तो अब क्या करें? वो तो बताएंगे हम तो दिन में इतने इतने घंटे पढ़ते हैं। हमने ये अज्यूम किया कि हर बच्चा दिन में इतने घंटे पढ़ता है, और उसके हिसाब से एक पूरी स्ट्रैटेजी बना दी। क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल गलत था। अभी, और ये इनहेरेंट बायस है, हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। सर्वे किया जा रहा है कि जो टीचर आपको पढ़ाता है वो कैसा है। ठीक है। इत्तेफाक से वो सारे बच्चे हो गए जो टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर को बहुत पसंद करते हैं, या इत्तेफाक से सारे वो आ गए जिनको पिछली क्लास में होमवर्क ना करने की वजह से जलील किया गया है। तो इनहेरेंट बायस आ सकता है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू चूज अ सैंपल। कौन सा सवाल है ये? 6th, 7th, बायस was 6th, 7th, how to choose a sample। या हम बोल सकते हैं, what are the sampling methods। एक ही बात है। सैम्पलिंग दो तरह से होती है। There are two sampling methods, random sampling and non-random sampling। रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, दो तरह की सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग में तीन चीजें होती हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्लस्टर सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग होती है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट ये बताया था कि हाउ टू चूज अ सैंपल और व्हाट आर सैम्पलिंग मेथड्स, एंड आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू सैम्पलिंग मेथड्स, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। Random sampling is further subdivided into three: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, and non-random sampling is divided as cluster sampling and quota sampling. Please put the subheading: simple random sampling.
There are two methods to perform simple random sampling. Number one, drawing lots, which is also known as balloting, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कुरानदाजी. नंबर टू, रैंडम नंबर सैम्पलिंग. होता क्या है ड्राइंग लॉट्स में? लेट्स से एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं. मैंने क्या किया, पर्ची पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 पर्चियां डाल दी, मिक्स कर दिया और रैंडमली पर्ची उठानी शुरू कर दी. इसको बोलते हैं ड्राइंग लॉट्स. तो अब 20 में से किसी भी बच्चे का आने का चांस इक्वली लाइकली है, कोई बायस नहीं है, और हर बच्चा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल एंड हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. इसको ड्राइंग लॉट्स बोलते हैं. रैंडम नंबर सैम्पलिंग क्या होती है कि हम फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है रैंडम नंबर का. प्लीज अगर आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें, कैलकुलेटर में नोट करें जो डेसिमल है, डेसिमल के ऊपर रैंडम नंबर लिखा हुआ है. यानी आप अगर शिफ्ट और डेसिमल दबाएंगे तो कैलकुलेटर में लिखा हुआ आएगा रैंडम नंबर. अब आप अगर इक्वल टू दबाएंगे तो आपका कैलकुलेटर आपको कोई भी नंबर दे सकता है. इस वक्त मेरा कैलकुलेटर मुझे नंबर दे रहा है 0.599. ठीक है. फिर मैंने इक्वल टू दबाया तो मेरे कैलकुलेटर ने नंबर दिया 0.384. फिर मैंने इक्वल टू दबाया तो मेरे कैलकुलेटर ने नंबर दिया 0.843. फिर मैंने इक्वल टू दबाया तो मेरे कैलकुलेटर ने नंबर दिया 0.454. फिर मैंने इक्वल टू दबाया तो मेरे कैलकुलेटर ने मुझे नंबर दिया 0.505. फिर मैंने इक्वल टू दबाया तो मुझे मेरे कैलकुलेटर नंबर दिया 0.748. फिर मैंने इक्वल टू दबाया तो कैलकुलेटर नंबर दिया 0.0031, सॉरी 0.031. फिर मैंने इक्वल टू दबाया तो 0.581, 0.887 एंड सो ऑन. अब लेट्स से हमारे पास जो सैंपल था, 2 मिनट के लिए अज्यूम करें, वो 0 से लेकर 999 तक था. तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं हम डायरेक्टली वो 599 वाले को चूज कर लेंगे. ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? सैम्पलिंग फ्रेम हमने सीखा था लास्ट क्लास में. सैंपल फ्रेम में जो हमने लिस्ट बनाई है और उनको जो नंबर्स असाइन किए हैं, ये उसके नंबर्स हैं. आप अपने कैलकुलेटर में लिख रहे होंगे रैंडम नंबर्स, तो हो सकता है कोई और नंबर्स आ रहे हो. तो जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं आपने चूज कर लिया. अब आप देखें सबके नंबर अलग अलग आ रहे हैं, यानी बायस का कोई चांस ही नहीं है. 384, 843, 454, ये सारे नंबर्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट हो गए. अग्री? तो एक तरीका तो रैंडम नंबर सैम्पलिंग का ये होता है. दूसरा तरीका ये होता है कि आप इन सब नंबर्स को एक ऑर्डर में लिख लें. लेट्स से 0.599, 0.384, 0.843, इस तरह करके. और अगर आपको लेट्स से 2 डिजिट नंबर्स चाहिए तो आप टू डिजिट्स इस तरह लेते जाएं. 05 एक नंबर आ गया, 99 एक नंबर आ गया, 03 एक नंबर आ गया, 84 एक नंबर आ गया, 8 एक नंबर आ गया, डेसिमल्स को इग्नोर कर दें, 43 एक नंबर आ गया. तो अगर आपको 2 डिजिट नंबर्स चूज करने हैं, लेट्स से आपका जो सैंपल फ्रेम है वो 0 से 99 तक का है, तो आपको 2 डिजिट नंबर्स चाहिए.
तो जो नंबर्स आते जाएंगे वो चूज होते जाएंगे। लेट्स से आपको बोला है द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ random number tables 6, 8, 7, 2, 5, 3, 8, 1, 5, 9, 2, 5, 3, 4, 7, 0, 5, 4, 9, 5, 3, 2, 6, 8, 7, 4, 4, 7, 0, 5। और आपको बोल रहा है यूज दिस टेबल to select a random sample of 8 people from a group of 100। तो हम क्या करेंगे, हम रियलाइज करेंगे अगर हमें 8 पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 100 चाहिए तो इट मींस 00 से लेकर 99 तक चाहिए। 00 से 99 तक 2 डिजिट्स होते हैं, यानी हमें 2 डिजिट नंबर्स चाहिए। अग्रीड। तो अब मैं लेट्स से ऐसे शुरू करता हूं। पहला जो मैंने चूज किया वो 68 किया, दूसरा जो मैंने चूज किया वो 72 किया, तीसरा 53 किया। रैंडम नंबर्स हैं, रैंडम ऑर्डर में चूज कर रहा हूँ। 81 किया, 59 किया, 25 किया। अगर कोई नंबर रिपीट हो जाएगा तो उसको स्किप करेंगे, अगला कर लेंगे। 34 किया, 70 किया। ये 8 लोग हमने चूज कर लिए फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 100। अच्छा, हो सकता है आपको रैंडम टेबल्स दिए हुए ना, तो हो सकता है कोई बोले मैं तो यहां से शुरू कर रहा हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 50, 74, 47, 86, 23। हो सकता है कोई बोले मैं तो यूं चलूंगा, 62, 85, 73, ऐसे भी चला जा सकता है, क्योंकि ये रैंडम नंबर सैम्पलिंग है। ठीक है, हम चाह रहे हैं बायस ना हो, हम किसी भी तरह ले लें, लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। इफ दिस इज क्लियर, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉपी दिस एग्जाम्पल। चलें जी, सिमिलर क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ रैंडम नंबर्स, यूज इट टू सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल of 8 people from a group of 60। Now it's a group of 60। पिछले सवाल में ग्रुप ऑफ 100 था, तो 00 से 59 तक। तो यानी अगर कोई नंबर 59 से बड़ा आएगा तो उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। सो पहला है 68, इग्नोर कर देंगे क्योंकि 59 से बड़ा है। 72 इग्नोर कर देंगे, 59 से बड़ा है। 53 चूज कर लेंगे। 81 इग्नोर करेंगे क्योंकि 59 से बड़ा है। 59 चूज कर लेंगे। 25 चूज कर लेंगे। 34 चूज कर लेंगे। 70 हट जाएगा क्योंकि 59 से बड़ा है। 54 आ जाएगा। 45 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। 68 नहीं आएगा। 74 नहीं आएगा। 47 आ जाएगा। अब कहता है द फॉलोइंग इज अ रैंडम नंबर टेबल ऑफ 12 नंबर्स। हमें चूज जो करने हैं वो 12 नंबर्स चूज करने हैं, ईच टू 2 डेसिमल प्लेस बिटवीन 0 and 10। बिटवीन 0 and 10। अच्छा जी, बिटवीन 0 and 10 बोला है, ये नहीं बोला 0 and 10 इंक्लूसिव। तो इसका मतलब 0 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता। उसके अलावा मुझे नंबर्स चाहिए जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस में हो। तो अगर मैं देखना शुरू करूं
5.27, 4.54, 8.06, 0 से 10 के बीच में है और 2 डेसिमल प्लेसेस में है। 8.72, 5.19, 6.08, ये 6 नंबर्स आ गए। 0.00 हम नहीं लेंगे। 0.00 इसलिए नहीं लेंगे कि इसमें 0 इंक्लूसिव नहीं था। 2.52, 0.99, 3.60, 4.35, 7.42, 1.34। So 12 numbers आ गए, each correct to 2 decimal place between 0 and 10. Consider the following random numbers and select it to find a random sample of 4 numbers correct to 3 decimal place between 0 and 5. इस बार 0 के नीचे equals का निशान है, which means 0 is included. 1.538, 4.224, 2.330 and 0.747 and that is correct. So 3 decimal place पे चाहिए था between 0 and 5. तो पहला वाला 8.480 हो नहीं सकता because it is greater than 5. दूसरा वाला 5.138 भी नहीं हो सकता, it is greater than 5. 6.103 भी नहीं हो सकता, it is greater than 5. So 1.538, 4.224, 2.330, 5.800 हो नहीं सकता, 0.747, 0.747. Systematic random sampling. Systematic random sampling is an alternative procedure to list the population in some order, because simple random sampling from a very large population requiring a large sample will be difficult to handle. We will list the population in some order, either alphabetically or by giving it a number, and then choose every nth number from the list. For example, if we want a 10% sample, then every 10th vehicle passing a checkpoint will be selected. If we want a 5% sample, then every 20th vehicle will be selected. Let's say आपको बोला है choose a systematic sample of 8 numbers from a list of 300 numbers. तो आप क्या करेंगे? पहला काम तो आप 0 0 0 0 0 1 0 0 2 इस तरह करते करते 299 की लिस्ट बनाएंगे। और अगर 001 से स्टार्ट किया होगा आपने तो 001 से लेकर 300 तक की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद 300 डिवाइड बाय 8 करेंगे, क्योंकि आपको 8 नंबर्स चाहिए फ्रॉम 300। सो 300 अपॉन 8 आ गया 37.5। तो अब आप चाहें तो एवरी 38th नंबर ले लें, या एवरी 39th नंबर ले लें, या एवरी 40th नंबर ले लें, जो भी आप चूज कर रहे हैं। मैंने लेट्स से 40th नंबर चूज किया। पहला नंबर मैंने रैंडम नंबर
निकाला एंड मेरा रैंडम नंबर आ रहा है लेट्स से 0.870। तो मैंने पहली टर्म ले ली 87, मतलब जो पहला मैंने चूज किया वो 87 चूज किया। अब 87 में 40 ऐड किया तो 127 आएगा, 127 में 40 ऐड किया तो 167 आएगा, 167 में 40 ऐड किया 207 आएगा, 207 में 40 ऐड किया 247 आएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 287। 287 के बाद 40 ऐड किया तो 327। अब 327 तो हो नहीं सकता क्योंकि 300 से ऊपर मेरे पास है नहीं। अग्री? तो 327 का मतलब है हमने दोबारा से साइकिल स्टार्ट करी। 300 पे पहुंचने के बाद या 299 पे पहुंचने के बाद हमने साइकिल रीस्टार्ट करी। तो अब अगला नंबर होगा 27। 27 में 40 ऐड किया 67, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। अग्री? हो सकता है कि मेरा पहला रैंडम नंबर कुछ और आता। लेट्स से मेरा पहला नंबर आया है रैंडम नंबर लेट्स से 16 फॉर एग्जांपल। तो 16 प्लस 40 56, 56 प्लस 40 96, 96 प्लस 40 136, 136 प्लस 40 176, 176 प्लस 40 216, 216 प्लस 40 256, 256 प्लस 40 296, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक सिस्टमैटिक चीज चल रही है, 40 के डिफरेंस से अगला रैंडम नंबर, अगला सैंपल चूज हो रहा है। तो वंस अगेन ये अनबायस्ड है क्योंकि हमें पहला ही नहीं पता, तो अगला क्या होगा वो भी नहीं पता ऑटोमेटिकली। ठीक है? और ये टाइम सेवर है कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें लार्ज पॉपुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। ये रिलेटिवली जल्दी हो जाएगा। पहला नंबर मैंने आपको बोला ना कि आप रैंडम नंबर से चूज कर रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर में चल रहे हैं। 287 के बाद 327 आ रहा है, 300 के ऊपर तो है ही नहीं, लिस्ट ही 300 नंबर्स की है। तो इसका मतलब आप शुरू से शुरू करेंगे। जब आप शुरू से शुरू करेंगे तो 327 विल बिकम, आफ्टर 300 इट विल बी 27। फिर 27 प्लस 40 इज 67, फिर 67 प्लस 40 वुड हैव बीन 107, डिपेंडिंग ऑन आपको कितने चाहिए। The advantage of using systematic sampling is that it is quick to carry out and easy to check for errors. अगला पैराग्राफ लिखें, the disadvantage of using systematic random sampling is that there might be a periodic cycle within the frame itself. इसका क्या मतलब है? सपोज करें हम किसी चीज का डिफेक्ट चेक कर रहे हैं और हम हर 20th पीस चेक करते हैं, 5 25 45 65 85, और इत्तेफाक से जो मशीन है उसमें हर 20th पीस जो है ना वो खराब निकलता है। देयर इज अ डिफेक्ट एंड दैट डिफेक्ट इज अ पीरियोडिक साइकिल। मतलब हमारा भी 20-20 का फर्क है और इत्तेफाक से हर 20th पीस भी उसके अंदर खराब निकलता है। तो इत्तेफाक से वही पीस खराब निकलता है जो हमारा सैंपल है, तो ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा मेरी सैंपलिंग फ्रेम में। बट ये बहुत रेयर केस सिचुएशन होता है, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का कि अगर इसके अंदर पीरियोडिक साइकिल चल रही है, जो एक खराब चीज हर उसी पॉइंट पे आ रही है, तो फिर हम फंस जाएंगे। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Stratified random sampling is used when the population is split into distinguishable layers or stratas that are quite different from each other and which together covers the whole population. Stratas can be age group, occupational group, geographical regions, and so on. सपोज करें पॉपुलेशन हमारी जो है, टारगेट ऑडियंस जो हमारी है, दैट इज पब्लिक स्कूल्स ऑफ कराची।
ठीक है जी। और कराची इज डिवाइडेड इनटू 7 डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची। इसी तरह लेट्स से हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन इज द वर्किंग क्लास एंड द स्ट्रैटिफिकेशन विल बी द ऑक्यूपेशन of that working class. Separate random samples are then taken from each strata and put together to form the sample of the population. It is always advisable to proportionately distribute the sample. Suppose करें मैं किसी चीज का सर्वे कर रहा हूं और उसमें 500 people are there, जिसमें से 200 कराची में, 250 लाहौर में और 50 इस्लामाबाद में। तो अगर मैं तीनों जगहों से इक्वल लोग ले लूं तो सही नहीं होगा, क्योंकि तीनों ज्योग्राफिकल लोकेशन के में अलग अलग मेरे पास सैंपल साइज है। लेट्स से मुझे सैंपल 50 का चाहिए, तो मैं कराची से चूज करूंगा 200 अपॉन 500 इंटू 50, दैट इज 20 का सैंपल लूंगा कराची से। लाहौर से लूंगा 250 अपॉन 500 इंटू 50, 25 का सैंपल लूंगा लाहौर से। और इस्लामाबाद से लूंगा 50 अपॉन 500 इंटू 50, दैट इज 5 का सैंपल मैं लूंगा इस्लामाबाद से। तो मैं हर जगह से उतना सैंपल लूंगा जो प्रोपोर्शनेट होगा उसके अपने स्ट्रेटा के हिसाब से। और ट्रांसपोर्ट कंपनी employs 320 drivers, 80 administrators and 40 mechanics. A committee to represent all employees is to be formed. The committee will have 11 members and the selection is to be made so that there is a close representation of each group without any bias towards any group or individual. Explain how this can be done. If simple random sampling of 440 employees would have been done, it would mean that there is an equal chance of any employee being selected, but there is a high probability that the committee will comprise of only 11 drivers, as drivers have a high chance of occurrence. आप नोट करें ना, probability of drivers 320 अपॉन 440 है, टोटल 440 लोग हैं, 320 प्लस 80 प्लस 40, 440 में से 320 ड्राइवर्स हैं, तो ड्राइवर्स की प्रोबेबिलिटी
8/11 है, तो हाईली लाइकली है कि सिर्फ ड्राइवर्स ही चूज हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। जो मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करूंगा, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हाईली लाइकली है कि सारे के सारे ड्राइवर्स चूज हो जाएं, तो मेरा सैंपल बायस हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और मैकेनिक्स नहीं होगी। देयरफॉर a stratified random sample would provide more accurate representation of the population, and thus the sample can be selected as follows: drivers 320/440 into 11, क्योंकि 11 लोगों की कमेटी बनानी है। admin 80/440 into 11, and mechanics 40/440 into 11। तो 8 लोग ड्राइवर्स में से सेलेक्ट कर लें, 2 लोग एडमिन में से सेलेक्ट कर लें और 1 मैकेनिक सेलेक्ट कर लें, तो सबकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, और सबकी रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन आ जाएगी, और ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग is also known as non-probability sampling, and comprise of cluster sampling, convenience sampling, quota sampling, and so on। जब कोई नेचुरल सब ग्रुपिंग होती है तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग के थ्रू सॉर्ट आउट होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जो मेजर फर्क है ना, वो ये होता है कि हर स्ट्रैटा का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। वेयरएज क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर सारे क्लस्टर्स में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, होमोजीनस होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, हेट्रोजीनस होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये मेजर फर्क है क्लस्टर सैम्पलिंग का और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का। दोनों में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हर लेयर डिफरेंट होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग में हर लेयर के फीचर्स बिल्कुल सेम होते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये होती है कि मुझे जो कन्वीनियंट लग रहा है मैं उसका सैंपल ले लूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 500 बच्चों का सर्वे करना है, तो मैंने वो 500 बच्चे ले लिए जो मेरे एक्सेस में थे, रादर देन बीइंग अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। कोटा सैम्पलिंग में ये होता है कि आप बेस्ड ऑन एज, जेंडर, एथनिसिटी अपने सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और हर कोटा में से, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोटा सैम्पलिंग करी हुई है कि माइनॉरिटीज 2 होने चाहिए, फीमेल्स 5 होनी चाहिए, और मेल्स जो हैं वो 8 होने चाहिए, तो ये कोटा सैम्पलिंग हो गई। आपने हर किसी के लिए एक कोटा डिसाइड कर लिया। अब ये जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ऑल्दो इट इज क्विक टू यूज, but everyone does not have an equal chance of being selected, and hence there is an element of bias। लिखिए, the advantage of non-random sampling that it is quick to use, but its disadvantage is that everyone does not have an equal chance of being selected, and hence there is an element of bias।